Hello everyone, welcome to SB Scholars Academy. If you are preparing for the NTA UGC NET JRF Home Science, ICR NET SLET TGT PGT TET Home Science, so you can subscribe our channel and click on the bell icon so you will be get notified when we will update any information. This channel is especially run by the professional expert. If you have any query regarding the study material and live classes, you can contact us on our mail ID, that is the sbscholarsacademy@gmail.com. We are also providing the previous year question bank, practice set question bank and quick revision note. For that you can contact us on our mail ID. Today we will discuss about the fat. It is one of the major nutrient. In our previous videos we have already discussed about the protein, carbohydrate. Now we are discussing about the fat. It is also one of the important major nutrient, and in our previous video we have listened the classification of nutrient, that is the major and minor. So fat is the major nutrient. Under fat there is a functions, classifications and one important concept, that is the fatty acids and its classification, because sometimes it is seen that some questions are asked from this portion. So we are covering only those portions which are important from the exam point of view. So let us start with that. Firstly, this is very important. You have to know that what is fat. Here we start with the classification. As you all know that fat और लिपिड जो होता है इसका तो एक डिफरेंस होता है, जो हम अपनी बाद की स्लाइड ले आएंगे, वीडियो ले आएंगे, उसमें अपन डिस्कस करेंगे क्या चीज़ें होती हैं ये। बेसिकली जो हम लिपिड की बात करते हैं कि लिपिड क्या होता है, लिपिड जो होता है एक नेचुरल सब्सटेंस होता है जो कि बेसिकली इनसॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो बेसिकली अगर कहा जाए कि हाउ यू आइडेंटिफाई द फैट, तो फैट का जो बेसिक क्लासिफिकेशन होता है या फैट की जो बेसिक पहचान होती है वो इनसॉल्यूबल होता है, किसमें, वाटर में, दैट इज़ द H2O। तो ये इसकी एक बेसिक डेफिनेशन होती है, दैट इज़ द इनसॉल्युबिलिटी इन वाटर एंड सॉल्युबिलिटी इन फैट। ठीक है, तो दिस इज़ द वी कैन कॉल्ड एज द कि फैट क्या होता है। फैट जो होता है वाटर में इनसॉल्यूबल होता है और फैट सब्सटेंसेस में सॉल्यूबल होता है। अब इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं, ये बहुत ही बेसिक्स हैं, तो आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। नाउ हियर वी स्टार्ट विद द because it is seen that some of the time they ask the example of the classification. Now here we start with the कि फ़ैट या अगर हम लिपिड की बात करते हैं, फ़ैट तो एक अलग कंसेप्ट है। अगर बेसिकली हम लिपिड की बात करते हैं तो लिपिड का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। लिपिड को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो होता है दैट इज़ द सिंपल, दूसरा जो होता है दैट इज़ द कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स, और तीसरा जो होता है दैट इज़ द डिराइव्ड। तो बेसिकली डिराइव्ड लिपिड क्या होता है, जो सिंपल और कंपाउंड दोनों को मिला के बनता है, दैट इज़ द डिराइव्ड। सिंपल जो होता है उसमें बेसिकली ईस्टर्स होते हैं, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद सर्टेन अल्कोहल, दे आर यूजुअली इनके और भी सब क्लासिफिकेशन है सच एज जैसे फैट, ऑयल और वैक्सेस। इसी तरह अगर हम कंपाउंड की बात करते हैं तो ये ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड होते हैं विच ऑन हाइड्रोलॉसिस। बेसिकली जो सिंपल वाले होते हैं दे आर नॉट हाइड्रोलॉसिस, बट अगर हम कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं दे आर हाइड्रोलॉसिस। और इनके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, दैट इज़ द फॉस्फोलिपिड, अमाइनोलिपिड एंड लाइपोप्रोटीन। और थर्ड वन दैट इज द डिराइव्ड। व्हाट यू हैव टू डू फ्रॉम दिस slide, from this chapter, you have to remember the classification of that lipid is classified into 3 parts, and further 2 lipids, that is the simple lipid and compound lipid, is sub classified, that is the simple is fat and oil and waxes. So you have to remember the name कि simple में fat और oil आते हैं और wax आता है। when we are talking about the complex और compound, तो उसके अंदर phospholipid, aminolipid और lipoprotein आता है। sometimes in the exam these things can be asked because it is seen that in the previous year question bank कि phospholipid is a type of which category lipid, so you can write us it is a compound or complex, same as it is aminolipid and same lipoprotein. Now it is a somehow important the function of the lipid, because sometimes the practical questions or applicable questions या applied questions can be asked from this part, but not many two questions are asked from these sub chapters, but you have to read if you want to clear the NET JRF. So you have to cover each and every part which is mentioned in the syllabus. Now we will discuss about the फंक्शन की फंक्शन क्या क्या होते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन होता है एनर्जी यील्डिंग, ये हम अपने पिछले प्रीवियस 2
3 वीडियोस में डिस्कस करते आ रहे हैं कि कैसे एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से। नाउ अगेन इन कंटेक्स्ट ऑफ फैट, तो मैंने पहले कंसेप्ट समझाया है कि जो पहले हमें एनर्जी मिलती है, जो एनर्जी सोर्सेज हमारी बॉडी इनटेक करती है उनसे मिलती है, देन इट्स कम फ्रॉम द फैट और देन इट्स कम फ्रॉम द प्रोटीन। तो ये इनका सीक्वेंस होता है। जो बॉडी होती है वो यहाँ से ऐसे एनर्जी यूटिलाइज शुरू करती है। जो एनर्जी यहाँ से हमें मिलती है दैट इज़ द कार्बोहाइड्रेट फूड जो हम खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो बॉडी यहाँ से पहले एनर्जी लेना स्टार्ट करती है, देन वो फैट के पास आती है, फैट से एनर्जी स्टार्ट, जब यहाँ का स्टोरेज खत्म हो जाता है देन बॉडी इज़ यूटिलाइजिंग द फैट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और फिर उसके बाद प्रोटीन जो आपकी बॉडी में होता है उससे बॉडी जो होती बॉडी वो एनर्जी लेना शुरू कर देती है। नाउ कम टू द टॉपिक दैट इज़ द एनर्जी यील्डिंग। एनर्जी यील्डिंग कैसे होता है? दैट इज़ द फैट आर कंसनट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मेनी टाइम्स आस्क्ड इन द एग्जाम। 1 ग्राम ऑफ फैट गिव्स 9 कैलोरीज। सो यू हैव टू रिमेंबर, ये हमने अपने उसमें बताया है कि प्रोटीन में कितना मिलता है, कार्बोहाइड्रेट में कितना मिलता है। नाउ इट इज़ फैट कि फैट में कितना मिलता है, दैट इज़ द 9 कैलोरीज। 1 ग्राम ऑफ फैट जो होता है वो 9 कैलोरीज प्रोवाइड करता है। कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट इट नॉट ओनली गिव्स मोर अमाउंट्स ऑफ एनर्जी बट एज फास्टर रेट टू। चूँकि फैट जो होता है वो रिच होता है तो ये हमें एनर्जी के साथ साथ और मतलब बहुत स्पीड में हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज और ये सारे फंक्शंस होते हैं। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। फैट ऑल्सो परफॉर्म द प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन। जो प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शंस बॉडी में परफॉर्म होता है वो भी फैट के थ्रू ही होता है। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन। स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी नीड्स। Obesity is one of the example to storage of fat. As you know that कि when any person is eating or consuming too much fat, oil fast food in which lots of fat or lipids are added, so they are going to be obese, मोटा होना स्टार्ट हो जाते हैं लोग, जो लोग बहुत ज़्यादा ऑयल या फैट या ऐसी चीज़ें खाते हैं, क्योंकि फ़ैट जो होता है उनकी बॉडी में स्टोर होने लगता है, उनके टिश्यूज़ में स्टोर होने लगता है। तो इस तरीके से बॉडी फिर क्या करती है, बाद में उसको स्टोर हाउस बना लेती है एंड अकॉर्डिंग टू टाइम एंड नीड उसको वो यूटिलाइज़ करना भी स्टार्ट कर देती है। Now, insulating and padding. The subcutaneous layer of fat is an effective insulator and reduces losses of body heat in cold weather. So it is very clear कि जो भी फैट की लेयर होती है वो क्या रिड्यूस करती है, हीट जो रिड्यूस करती है कोल्ड वेदर में, दस रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर। तो इस वजह से कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो कहते हैं हमें बहुत ठंड नहीं लगती, बिकॉज मे बी उनके एक बॉडी का फैक्टर हो सकता है कि उनकी जो बॉडी में जो फैट है वो कहीं ना कोई एक इंसुलेटर का वर्क करता है और उसको ठंड कम लगती है, और एक ये इसका फंक्शन भी है। द वाइटल ऑर्गन सच एज द किडनीज आर द प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द फिजिकल इंजरी बाय पैडिंग ऑफ फैट अराउंड द ऑर्गन्स। तो बेसिकली जो फैट की पैडिंग होती है, जो फिजिकल इंजरी किडनी में मतलब हो सकती है ड्यू टू एनी रीज़न, वो कहीं ना कहीं फैट की जो पैडिंग लेयर होती है उसको प्रोटेक्ट करती है। नाउ नेक्स्ट वन दैट इज़ द फैट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट। डेफिनेटली दिस इज़ द वेरी वेल नोन फंक्शन ऑफ द फैट कि फ़ैट जो होगा वो फैट के थ्रू ही सॉल्यूबल होता है, और उसके साथ साथ जो फैट सॉल्यूबल विटामिन होते हैं, जो मैंने क्लासिफिकेशन पहला डिस्कस किया था उसमें समझाया था कि फ़ैट सॉल्यूबल विटामिन की एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि सिर्फ फैट मोड में ही एब्जॉर्ब होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो इस तरह कह सकते हैं कि जो फैट है वो एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। प्रोवाइड इसेंशियल फैटी एसिड्स, येस डेफिनेटली जो हमारी बॉडी को फैटी एसिड जो हमारी बॉडी नहीं बना पाती है, जो उस फैटी एसिड्स को फैट हमें प्रोवाइड करता है, वी विल डिस्कस इन द लेटर स्लाइड्स। फैट एक्ट्स एज ए लुब्रिकेंट एज वी ऑल नो दैट फॉर वेरियस बॉडी ऑर्गन्स स्पेशली द ऑर्गन्स ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। फैट जो होता है बहुत ही सरल शब्दों में कहूँ तो चिकना होता है, तो चिकनाई की वजह से वो एज ए लुब्रिकेंट वर्क करता है। गिव सटाइटी वैल्यू, फैट अगर आप अच्छे से कंज्यूम करते हैं, फैटी फूड्स खाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक सटाइटी मिलती है। फैट डिप्रेसेस द सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक। येस दिस इज़ द पॉइंट कि फैट क्या करता है, जो HCl होता है स्टमक में उसको कहीं ना कहीं डिप्रेस कर देता है। इस वजह से दस द फूड स्टेज इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड फीलिंग ऑफ हंगर इज डिलेड। सो बेसिकली व्हाट फैट डज दैट कि वो
जो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि हमारे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसको सप्रेस कर देता है, उसको डिप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से जो खाना होता है वो तुरंत डाइजेस्ट नहीं होता और आपके स्टमक में काफ़ी टाइम तक स्टे करता है. सो यू फील सटाइटी, यू फील लाइक हेवीनेस. सो मतलब दिस इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ द फैट. Now, fat also increases the palatability definitely of the diet by adding flavor to many cooked preparations. जब आप सपोज यार कि आप एक रिफाइंड ऑयल में बनाइए और एक घी में बनाइए, तो जो घी की खुशबू आती है वो कहीं ना कहीं आपको खाने का एक फ्लेवर देती है, एक भूख बढ़ाती है. तो दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फैट की एक तरह से आपकी जो पैलेटेबिलिटी होती है उसको भी इंक्रीज करता है. नाउ देयर आर सम टर्म्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज डायरेक्टली क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जाएंगे कि लाइक व्हाट इज द ट्राइग्लिसराइड और व्हाट इज द फैटी एसिड्स, बट सम टाइम दे कैन आस्क यू एज अ assertion part or reasoning part, like they give you some line regarding the triglyceride and some line regarding the fatty acid. So what you have to do, you have to know the basic concept ki actually what is the triglyceride and what is the fatty acid. So if you are preparing for the NET JRF examination, we are continuously saying that just go through some of the textbook or reference book for major clearance of your concepts, because अगर आप अपने टेक्स्ट बुक से अपने मेजर कंसेप्ट्स को नहीं क्लियर करेंगे तो आपको वीडियोस नहीं समझ में आएंगी, और अगर आप एक बार वहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको यहाँ की चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी. और बाकी इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरीज, कोई भी कन्फ्यूज़न है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे मैसेज कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस. सो नाउ कम टू दैट कि व्हाट इज द ट्राइग्लिसराइड्स. ट्राइग्लिसराइड्स क्या होती हैं? दे आर द ईस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड. तो बेसिकली what you have to learn, triglycerides are the esters of glycerol and fatty acid. Maybe they like asked in the assertion कि triglycerides are the ester of glycerol and fatty acid, and in reason they asked that fatty acid are the carboxylic acid with hydrocarbon side chain. So yeah, this is true, both are the true, there is nothing wrong. तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है, but this cannot be asked in the exam, going to be asked in the exam, so you have to prepare in a very hard manner. Main form of fat both in food stuffs and storage depots in डिपॉजिट, बेसिकली दैट इज़ अ डिपॉजिट ऑफ मोस्ट एनिमल्स. तो बेसिकली अगर हम बात करें जो फैट होता है वो कैसे डिपॉजिट होता है, दैट इज इन फॉर्म ऑफ द ट्राइग्लिसराइड. सेम एज इट इज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फैटी एसिड्स. फैटी एसिड्स आर द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड विद हाइड्रोकार्बन साइड चेन. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्राइग्लिसराइड एंड फैटी एसिड? ट्राइग्लिसराइड्स आर द ग्लिसरॉल विद फैटी एसिड्स एंड फैटी एसिड्स आर द कार्बोक्सिलिक एसिड with hydrocarbon chain. They are simple form of lipids. So definitely this is the very important कि fatty acids जो होते हैं वो simplest form of lipid होते हैं. Now this is the very important कि आप fatty acids और triglycerides का आपने basic पढ़ लिया. Now what you have to do, you have to remember the classification of fatty acids. So this is a very basic concept. You guys can read by yourself. If you have still any confusion, any question, you can ask. We are going to be reply. अगर आपको इसके अलावा भी इस पे सेपरेट वीडियो चाहिए, सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट और शॉर्ट चेन, मीडियम चेन, तो प्लीज़ कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स. सो वी विल मेड, हमें पता चलना चाहिए कितने लोग इसको जानना चाहते हैं, बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये बेसिक्स हैं जो सबको पता होता है ना. फैटी एसिड जो होते हैं दैट इज़ क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स. वन इज़ द सैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरा जो होता है दैट इज़ द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को फर्दर क्लासीफाई किया गया है. दैट इज़ द वन ऑफ द शॉर्ट चेन, मीडियम चेन एंड लॉन्ग चेन. और दूसरा जो होता है दैट इज़ द म्यूफा एंड प्यूफा, जिसको हम मोनो अनसैचुरेटेड, यहाँ पे फैटी एसिड का फुल फॉर्म FA आएगा. और प्यूफा जो होता है दैट इज़ अ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, चूँकि ये प्रीवियस ईयर में एक दो बार पूछा गया, बट आई एम नॉट सपोज दैट कि दिस कैन बी गोइंग टू बी रिपीट इन द एग्जाम, कि आपसे दोबारा इसका फुल फॉर्म पूछा जाए, क्योंकि कई बार एग्जाम में म्यूफा और प्यूफा का फुल फॉर्म पूछा जाता है. तो दैट इज़ द MU. M का मतलब मोनो
और U का मतलब अनसैचुरेटेड और F का मतलब फैटी और A का मतलब एसिड. सो व्हाट इज द फुल फॉर्म? दैट इज द मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, सेम एज इट इज P for poly, U for unsaturated, F for fatty और A for acid. So this is the full form of MUFA and PUFA. This is the important, maybe they asked in the example of MUFA and PUFA, so you have to read it in a very deeply, क्योंकि ये पार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो बॉडी के लिए बहुत हेल्दी होते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस जो वो एग्जाम में पूछे जाते हैं. नाउ बॉडी फैट क्या होता है, किसे कहते हैं, किस टाइप्स के होते हैं? तो देयर आर सम एग्जांपल्स. फॉस्फोलिपिड जो एक बॉडी फैट कहलाता है और कॉल्ड पोलर लिपिड्स, और इसको हम एम्पीफिलिक लिपिड बिकॉज दे पोजेस केमिकल ग्रुप दैट एसोसिएट विद द वाटर, दोज दैट आर लिपिड सोल्यूबल. तो बेसिकली फॉस्फोलिपिड जो होते हैं वो पोलर लिपिड कहलाते हैं या एम्पीफिलिक लिपिड कहलाते हैं. क्यों? क्योंकि इनके जो केमिकल ग्रुप होते हैं वो कहीं ना कहीं वाटर से एसोसिएटेड होते हैं जो कि लिपिड सॉल्यूबल होते हैं. तो दैट इज़ द फॉस्फोलिपिड विच इज़ द वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ बॉडी फैट. नाउ कोलेस्ट्रॉल बहुत ही पॉपुलर है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अभी भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कोलेस्ट्रॉल के ऊपर. सो यहाँ पे एक बहुत ही ब्रीफ हमने बताया है कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो भी बॉडी में एक फैट का टाइप होता है कि जो बॉडी में प्रेजेंट होता है. अब यहाँ पे किसको कौन सा कहते हैं? जो एनिमल स्टेरॉल्स होते हैं उनको हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और जो प्लांट स्टेरॉल्स होते हैं उनको फाइटोस्टेरॉल्स कहते हैं, और माइकोस्टेरॉल्स जो होते हैं उनको हम अर्गोस्टेरॉल्स कहते हैं. आई नो दैट देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू बी आस्क्ड इन योर माइंड कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ. तो ठीक है, देयर आर वेरी क्वेश्चन, सो दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट कि वी विल गोइंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो रिगार्डिंग द कोलेस्ट्रॉल. सो ऑल द कंसेप्ट्स आर गोइंग टू बी क्लियर इन दैट वीडियो. सो बेसिकली आपको क्या समझना है कि एनिमल स्टेरॉल जो होता है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल इज द स्टेरॉल, और एनिमल स्टेरॉल क्या होता है? उसको अपन कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और प्लांट स्टेरॉल जो होता है उसको अपन फाइटोस्टेरॉल कहते हैं, और माइकोस्टेरॉल जो होता है उसको अपन अर्गोस्टेरॉल कहते हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कीटोन बॉडीज़ की कीटोन बॉडीज़ क्या होती हैं या कीटोसिस क्या होती है. अगर इसके ऊपर आपको डिटेल में और पढ़ना है तो प्लीज़ गाइस कमेंट सो वी कैन मेड. कीटोन बॉडीज़ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा है. देयर आर लॉट्स ऑफ बुक्स, लॉट्स ऑफ मटेरियल्स, लॉट्स ऑफ टाइप्स आर रिटन, बट हियर वी आर गोइंग टू प्रेजेंट इन अ वेरी सिंपलर मैनर. और again and again any questions you can ask. If you want any separate topic video you can comment us, or you can write us on our WhatsApp number or mail ID so we can made. Ketone bodies chemical that our body makes when there is not enough insulin in blood and it must break down the fat instead of the sugar glucose for energy. तो बेसिकली क्या होता है कि जब आपकी बॉडी में इंसुलिन इनफ अमाउंट में नहीं प्रेजेंट होता है और फिर जो ब्लड जो आपकी बॉडी होती है वो क्या करती है, वहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाता है, फैट का ब्रेकडाउन हो जाता है जहाँ पे आपका शुगर या ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना चाहिए. तो दैट इज़ द बेसिकली ये एक कंसेप्ट है. द कीटोन बॉडीज एसीटोन एसीटोएसीटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट आर टॉक्सिक एसिडिक केमिकल. तो बेसिकली ये कुछ केमिकल्स होते हैं जो इनके नाम है विच वी हैव टू रिमेंबर. दैट इज द एसीटोन, एसीटोएसीटेट, दैट इज द बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट. ये जो टॉक्सिक एसिड केमिकल दे बिल्ड अप इन द ब्लड एंड देन स्पिल ओवर इनटू द यूरिन. तो बेसिकली जब बॉडी क्या करती है, जब इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता है तो वो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ना करके वो फैट का ब्रेकडाउन कर देती है, जिसकी वजह से ये जो कंपाउंड होते हैं, टॉक्सिक कंपाउंड होते हैं, दैट इज़ द एसीटोन, एसीटोएसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, ये जनरेट हो जाते हैं और जो कि फिर ये ब्लड में स्पिल हो जाते हैं into the urine. The body can also rid itself acetone through the lungs. बॉडी जो होती है itself इसको rid कर सकती है lungs के थ्रू. दिस गिव्स द ब्रीथ अ फ्रूटी ऑर्डर. इसको इस तरह से एक फ्रूटी ऑर्डर होता है. दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम कि फ्रूटी ऑर्डर कैसे जनरेट होता है. तो ये जो एसीटोन जब रिड ऑफ होता है थ्रू लंग्स तो इसके थ्रू मतलब एक फ्रूटी ऑर्डर जनरेट हो जाता है. द प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन द ब्लड इज टर्म्ड एज अ कीटोसिस. सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट कि व्हाट इज कीटोसिस. कीटोसिस इज दैट द कीटोन बॉडीज़ की जो प्रेजेंस होती है उसको हम बेसिकली ब्लड में उसको हम कीटोसिस कहते हैं. और कीटोन बॉडीज़ जब यूरिन में प्रेजेंट होती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कीटोन यूरिया. सो दीज टू कंसेप्ट्स आर द इम्पॉर्टेंट. फर्दर इफ यू नीड मोर डिटेल अबाउट दैट प्लीज़ कमेंट.
ना फूड फैट के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से फूड फैट्स होते हैं जिनको हम जानते हैं। तो मेजर जो होता है दैट इज़ द ट्रांस, जो आपने कॉमनली सुना होगा, विजिबल एंड विजिबल, एंड द लास्ट वन दैट इज़ द आइसोप्रीनॉइड्स। सो ट्रांस फैटी एसिड्स, आपने इसका भी एक बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दैट, बट एक सिस फॉर्म होता है, एक सिस फॉर्म होता है, एक ट्रांसफॉर्म होता है। तो दैट इज़ द ट्रांस फैटी एसिड, जो कि बेसिकली हार्मफुल होता है बॉडी के लिए, तो इसको बिल्कुल नहीं कंज्यूम करना चाहिए। डब्ल्यू ने इसको कहीं ना कहीं बैन कर दिया, और डब्ल्यू का ये सजेशन होता है कि प्लीज़ डोंट यूज़ द ट्रांस फैटी एसिड्स। मतलब उसके हिसाब से ट्रांस फैटी एसिड इज़ लाइक अ किलर ऑफ लाइफ। सो जो भी आप देखते हैं मोस्ट ऑफ द चिप्स पैकेट्स एंड ऑल उसमें ट्रांस फैटी एसिड्स के बहुत यूज़ होते हैं, तो प्लीज़ अवॉइड दैट्स बिकॉज ऑफ। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द आइसोप्रीनॉइड्स। क्या होते हैं आइसोप्रीनॉइड्स? जो होते हैं दे आर द एक्टिवेटेड डेरिवेटिव्स ऑफ आइसोप्रीन। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लार्ज और डाइवर्स ग्रुप होते हैं लिपिड्स के, जो कि कैसे बनते हैं, मोर मतलब 5 या उससे मोर कार्बन की यूनिट से बनते हैं। तो एक ये फूड फैट होता है जो प्रेजेंट होता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द विजिबल एंड इनविजिबल। विजिबल और इनविजिबल आप इस तरीके से समझ सकते हैं, लाइक एक आप घी यूज़ कर रहे और एक आप पराठा खा रहे हैं, ठीक है। तो पराठा अगर घी से बना है तो उसमें घी जो है दैट इज़ द मिक्स हो गया, तो वो कहीं ना कहीं आपका इनविजिबल फैट हुआ। और यहाँ पे आप चपाती में अगर घी लगा के खा रहे हैं दैट इज़ द योर विजिबल फैट। सो इट इज़ इसी तरह कई बार हम ऐसे फैट रिच जो मतलब फैटी रिच फ्रूट्स होते हैं, फूड आइटम्स होते हैं, उनको खाते हैं तो हमें लगता है कि हमने फैट तो कंज्यूम ही नहीं किया, बट यू हैव ऑलरेडी कंज्यूम द मतलब जो भी आपकी रिक्वायर अमाउंट होती है उसको आप खा चुके होते हैं। अगेन देयर इज़ अ कंसेप्ट दैट इज़ द इसेंशियल फैटी एसिड्स। इसेंशियल फैटी एसिड्स क्या होते हैं? जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था अमाइनो एसिड्स के बारे में, इसेंशियल नॉन इसेंशियल, इसी तरह इसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती है, उसको हमें डाइट के थ्रू या एक्स्ट्रा फूड मटेरियल के थ्रू लेना पड़ता है। तो दैट इज़ कॉल्ड द इसेंशियल फैटी एसिड, जो कि हमारी बॉडी में और रेगुलेटरी फंक्शंस के लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दे आर कॉल्ड एज ए इसेंशियल फैटी एसिड्स। अब इसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं? इसके एग्जाम्पल्स होते हैं लिनोलेनिक एसिड, अल्फा लिनोलेनिक और अल्फा लिनोलेनिक एसिड एंड आर्चिडोनिक एसिड। You have to remember these names because these are going to be asked in the exam. The example of the essential fatty acids and why it is essential, because body cannot be synthesized, so it is the essential. Thank you so much guys for watching, for listening. If you have any query you can write us on the comment box. यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बेसिक कंसेप्ट्स थे जो कि जैसे एसेंशियल फैटी एसिड्स हो गया, कीटोन बॉडी कीटोसिस हो गया, क्लासिफिकेशंस की डिटेल हो गई फैटी एसिड्स की। तो अगर आप उस पर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट ऑन द comment box so we can make. Thank you so much for listening.